حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل قمر باجوہ کل 16ویں سپہ سالار کی حیثیت سے پاک فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ کمان تبدیلی کی تقریب سے قبل آرمی چیف جنرل راحیل شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 4 اسٹار بیجز لگائیں گے۔ دنیا کی سب سے زیادہ سخت جان فوج کی کمان کرنے پر فخر ہے۔ کامیابیاں پوری فوج کے بھرپور تعاون کے بغیر ممکن نہ تھیں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کور کمانڈر کانفرنس سے آخری خطاب۔ صدر ممنون اور وزیر اعظم نواز شریف سے بھی الوداعی ملاقات۔ بلدیہ فیکٹری کے جنرل مینیجر منصور اور شاہ رخ کے کہنے پر فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں گرفتار ملزم زبیر عرف چریا کا عدالت میں بیان۔ عبد الرحمان بھولا کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ عدالت کا اظہار برہمی۔ کراچی کے علاقے پاکستان چوک میں مخدوش عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ متاثرہ خاندانوں کو فی کس 1.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، مالک کا اعلان۔ متاثرہ مکینوں کا عمارت سے باہر نکلنے کا عمل جاری۔ لاہور میں لیگی کارکن سمیہ چودھری کی موت کی تحقیقات جوں کی تو۔ ہاسٹل کے کمرے میں آخری بار کون آیا کون گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہ مل سکی۔ چمبا ہاؤس کے 10 ملازمین کے بیانات قلم بند۔ فورنزک رپورٹ کے بعد ہی قتل یا خودکشی کا معمہ حل ہوگا، رانا ثناء اللہ کا بیان۔ لاہور میں ملت پارک میں ڈکیتی کے دوران 5 افراد کو قتل کرنے والوں کی شناخت ہو گئی۔ ملزمان میں جہانگیر بھولا، زاہد اور باسو شامل۔ گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کے الیکٹرک نے نادہندگان کو بے نقاب کر دیا۔ مختلف علاقوں میں بڑے بجلی چوروں کی پراپرٹیز کے نام اور واجب الادا رقم سب اخبار میں چھپوا دی۔ الکرم اسکوائر 42 کروڑ روپے کی بجلی چوری کے ساتھ سب سے آگے۔ دیگر شاپنگ سینٹرز اور پلازا بھی روپے کے نادہندہ۔ یکم دسمبر سے اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی چھان بین ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی۔ پولیٹیکل فائنانس ونگ چھان بین کرے گا۔ ایف بی آر، نیب اور دیگر اداروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے پیناما لیکس کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ مے فیئر فلیٹس اور جائیدادوں سے متعلق دستاویزات بھی شامل۔ تحریک انصاف دن میں 3 بار ثبوت کا جھوٹ بولتی رہی، لیکن حامد خان عدالت میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان اور جہانگیر ترین بتائیں کہ آف شور کمپنیز گوشواروں میں ظاہر کیوں نہیں کی، ہم ان کی تلاشی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیگی رہنماؤں کی تنقید۔ پیپلز پارٹی نے 90 کی سیاست چھوڑ دی، مگر نون لیگ نے نہیں چھوڑی۔ اگر عمران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ حکومت 27 دسمبر تک مطالبہ تسلیم کرے، خورشید شاہ کی نون لیگ کو وارننگ۔ پنجاب کے 12 نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ وزراء خود کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کراچی میں آج بھی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے۔ معاملے میں کے ڈی اے کے افسران کا نام آ رہا ہے۔ سندھ حکومت مذاق بند کرے اور میئر کو اختیارات دے۔ وزیر بلدیات اردو نہیں چینی زبان سمجھتے ہیں، خواجہ اظہار الحسن کی تنقید۔ این ایف سی اجلاس میں وفاق نے نیشنل سیکیورٹی فنڈ بنانے کی تجویز دے دی۔ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف اضافی فنڈز مانگ لیے۔ 10 دسمبر تک ایوارڈ کی حتمی سفارشات تیار ہوں گی۔
दिसंबर के तीसरे हफ्ते में फैसला कौन इजलास होगा, इसहाकदार की मीडिया को ब्रीफिंग। कराची के हल्का एन 258 में जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच को खासे बढ़तरी हासिल। आज 9 बजे में मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज में कमान की तब्दीली का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और जनरल जुबैर महमूद हयात ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया है। जनरल जुबैर कमेटी के सतर में चेयरमैन बन चुके हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने नए चेयरमैन को सलामी पेश की। जनरल जुबैर हयात ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना और उन्होंने तकरीब में मौजूद अफसरान से मुसाफा भी किया। पाक फौज में कमान की तब्दीली का पहला मरहला पुरवकार अंदाज में मुकम्मल कर लिया गया। जनरल राशिद महमूद के ओहदे की मियाद मुकम्मल हो गई, जिसके बाद जनरल जुबैर महमूद हयात नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो गए। इस हवाले से ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल जुबैर हयात तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जनरल जुबैर महमूद हयात ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जनरल जुबैर हयात ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 17वें चेयरमैन बन गए। पुरवकार तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने जनरल जुबैर हयात को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान समेत साबिक जर्नल भी शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर जनरल जुबैर हयात आला अफसरान से भी मिले। जनरल जुबैर महमूद हयात ने आला साबिक फौजी अफसरान से मुसाफा भी किया। नाज़रीन, पाक फौज के सरबराह की कमान तब्दीली की तकरीब कल होगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा 16वें सिपाही सालार की हैसियत से कमान संभालेंगे। मजीद बताएंगे रावलपिंडी से फैसल रजा खान। पाक फौज के सिपा सालार की तब्दीली 16वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। सुबह 10 बजे होने वाली तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। कमान तब्दीली की तकरीब से कबल आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 4 स्टार बैजेस लगाएंगे, जिसके बाद जनरल राहील शरीफ अपने जानशीन जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा तकरीब में पहुंचेंगे, जहां फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का चाको चौबंद दस्ता अपने रेजिमेंट के जर्री और बहादुर सपूत जनरल राहील शरीफ को एजाजी गार्ड पेश करेगा, तो बलोच रेजिमेंट का दस्ता भी जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी पेश करेगा। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली तकरीब का अहम मरहला कमान की तब्दीली होगी, जिसमें जनरल राहील शरीफ रिवायती छड़ी जनरल कमर जावेद बाजवा के सुपुर्द करेंगे। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आला अफसरान समेत काबीना अराकीन और सियासी कायदीन को मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ कमान की तब्दीली की तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकार, दिफाई अताशी और साबिक फौजी सरबराहान और अफसरान भी शिरकत करेंगे। फैसल रजा खान, आज न्यूज, रावलपिंडी। रुखसत होते आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को अलविदा कहने के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सुबुकदोश होने वाले सिपाही सालार का कहना था कि हरबी लिहाज से दुनिया की सख्त जान पाक फौज की कमान करने पर उन्हें बहुत फख्र है।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सरबराही में अलविदाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान ने शिरकत की। कोर कमांडर्स ने इज्तिमाई तौर पर जनरल राहील शरीफ की क़यादत, पेशावराना सलाहियतों और ग्रां कद्र कौमी खिदमात को सराहा। जनरल राहील शरीफ ने नामजद आर्मी चीफ को जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने और आर्मी चीफ के ओहदे पर उनका तकर्रुर होने पर दिली मुबारकबाद दी। अपने मुख्तसर खिताब में जनरल राहील शरीफ ने कहा कि 3 साल तक हरबी लिहाज से दुनिया की सख्त जान फौज की कमान करने पर फख्र है। इस दौरान हासिल शुदा कामयाबियां पूरी फौज के भरपूर ताउन के बगैर मुमकिन न थीं। जनरल राहील शरीफ ने 3 साला दौर में कोर कमांडर्स की तरफ से कलीदी ताउन मिलने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने पर गुजरात में उनके ननिहाली शहर जलालपुर जट्टा में जश्न का सा समा है। उन्होंने अपना बचपन कैसे गुजारा, ये जानेंगे जनरल कमर जावेद के रिश्तेदारों और दोस्तों की ज़बानी एजाज शाकिर की रिपोर्ट में। पंजाब के जिला गुजरात को एक बार फिर अहमियत हासिल हो गई। पाक फौज से सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का ददियाल गुजरात में है। पाक फौज के नए सिपह सालार के ननियाल होने का एजाज भी जिला गुजरात के हिस्से में आया। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के ऐलान के बाद उनके रिश्तेदार और मोहल्लेदार इंतहाई खुश हैं। वालिद साहब भी अल्लाह जी नसीब करे फौत हो चुके हैं, भी आर्मी जी सन, और उन्होंने दी वालदा भी अल्लाह जी नसीब करे फौत हो गई। उन्होंने भी ख्वाहिश सी कि कमर एक बहुत बड़ा अफसर बने। आज मैं बहुत खुश हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जनरल कमर जावेद बाजवा के मामू नासिर वराइच का कहना है कि जनरल साहब के आर्मी चीफ बनने पर उन्हें बहुत खुशी है। कि वो बातें करते थे तो वो यही कहते थे अपने फैमिली के बीच में कि मैं भी बड़ा होके अपने अब्बू की तरह आर्मी ज्वाइन करूंगा और बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। और आज अल्लाह ताला ने ये मौका उनको दिया है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो यहाँ पाकिस्तान की यानी कि बॉर्डर की हिफाजत करेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे। जनरल कमर बाजवा के नाना के घर के सामने वो छोटा सा ग्राउंड आज भी मौजूद है जहां वो बचपन में अपने हमउम्र लड़कों के साथ खेला करते थे। तो जलालपुर जट्टा में जश्न का समा तो आपने देखा। अब चलेंगे कराची, जहां बल्दिया फैक्ट्री केस में नया मोड़ आ चुका है। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में हम्माद सिद्दीकी, अब्दुल रहमान भोला और दीगर के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस ने नया मोड़ ले लिया। मुलजिम जुबैर लाला उर्फ चरिया ने अहम इंकशाफात कर दिए। मुलजिम जुबैर ने अदालत में बयान दिया कि फैक्ट्री में आग जनरल मैनेजर मंसूर और शाहरुख ने लगाई और दोनों के कहने पर ही मुलजिम ने दरवाजे बंद कर दिए। मुलजिम जुबैर ने एतराफ किया कि उस वक्त के SSP ने फैक्ट्री मालकान के खिलाफ बयान देने का कहा था और बयान लिए बगैर ही दफा 164 का बयान बना दिया गया। इससे पहले फैक्ट्री मालकान के वकील ने अदालत को बताया कि JIT में वाज़ेह लिखा है कि फैक्ट्री को भत्ता न मिलने पर जलाया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि फैक्ट्री मालकान के खिलाफ इल्जाम है कि फैक्ट्री के दरवाजे बंद कराए। दौरान समात अदालती इस्तिफसार पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिमान दुबई में हैं। अदालत ने मुलजिम जुबैर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज करते हुए केस की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मुकदमे में फैक्ट्री के मालकान को भी गवाह करार दे दिया। और नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये हम देख रहे हैं सानहा बल्दिया टाउन में, जिसको 4 साल बीत चुके हैं। पहले 261 अफराद की मौत को हादसा करार दिया गया, फिर फैक्ट्री मालिकान पर इल्जाम लगाया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे भत्ते से इनकार का शाखसाना भी करार दे दिया, लेकिन आज इसमें अनीस अहमद कायम खानी का नाम लिया गया है और नहीं किसी ने साबिक गवर्नर सिंध पर वाकये में मुलव्वस होने की हिदायत की है। 11 सितंबर 2012 हब रिवर रोड पर वाक़ई अली इंटरप्राइजेज में आतिशज़दगी का हौलनाक वाक़या पेश आया। दो 261 अफराद जिंदा जल गए। पुलिस ने इब्तिदा में आतिशज़दगी को हादसा करार दिया। फैक्ट्री मालकान की गिरफ्तारी अमल में आई और इल्जाम आयद किया गया कि उनकी हिदायत पर फैक्ट्री के गेट बंद किए गए थे। गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार रिजवान कुरैशी की GIT रिपोर्ट अदालत में पेश हुई।
तो वाकये में दहशतगर्दी का पहलू सामने आया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि MQM तंजीमी कमेटी के सरबराह हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालकान से भत्ता तलब किया था और इनकार पर साबिक सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान भोला ने आग लगाई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में अनीस कायम खानी और उनके अजीज अब्दुल सत्तार का नाम भी सामने आया और मुस्तफा कमाल ने उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद पर भी मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। मगर आज मुकदमे के वाहिद गिरफ्तार मुलजिम जुबैर उर्फ चरिया ने फैक्ट्री मालकान को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट देकर मैनेजर पर दरवाजे बंद कराने का इल्जाम धर दिया है। मुलजिम ने हम्माद सिद्दीकी और अब्दुल रहमान भोला के अलावा बाकी मुलजिमान का भी कोई जिक्र नहीं किया। और अब चलते हैं लाहौर, जहां पर इसरार तौर पर हलाक होने वाली मुस्लिम लीग नून की कारकुन समिया चौधरी केस के सिलसिले में चुम्बा हाउस के 40 मुलाजिमीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। सूबाई वजीर कानून का कहना है कि कत्ल या खुदकुशी का फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद होगा। कामरान राजपूत रिपोर्ट करेंगे। चंबा हाउस लाहौर में 2 रोज कबल पुरस्रार तौर पर हलाक होने वाली मुस्लिम लीग नून की खातून वर्कर और FBR के अफसर आसिफ महमूद की अहलिया समिया चौधरी की हलाकत की तहकीकात के सिलसिले में चंबा हाउस के 40 मुलाजमीन के पुलिस ने बयानात कलम बंद कर लिए। पुलिस राय के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद या ज्यादती के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। पोस्टमार्टम भी करवा चुके हैं, उसमें इसका सैंपल्स जा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। तो चीज़ों पे हम करके सारी चीज़ें इकट्ठी करके कलेक्ट करके सारे शवाहिद, उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फाइनल करेंगे। इंटेरोगेशंस चल रही हैं लेकिन प्रॉपर गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं। समिया कत्ल केस का मुकदमा खातून के शौहर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कत्ल या खुदकुशी का मुअम्मा हल होगा। एक आध दिन में जो है वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ये इस बात का फाइनल होगा कि आया उसकी मौत जो है वो किसी वायलेंस के नतीजे में हुई है या किसी यानी ऐसी खुराक या कोई ऐसी मेडिसिन की वजह से हुई है। पुलिस राय के मुताबिक समिया चौधरी का डाटा रिकॉर्ड हासिल करके तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। कामरान राजपूत, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर के सरकारी हॉस्टल से मिलने वाली लीगी खातून की लाश का मामला ताहाल हल नहीं हो पा रहा है। इस केस पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे कामरान राजपूत से। कामरान राजपूत, नई तफसीलात सामने आ चुकी हैं, डेटा भी हासिल कर लिया गया है समिया के मोबाइल फोन का। अब पुलिस क्या बताती है, कहां तक पहुंच पाई है तफ्तीश में? जी, मुस्लिम लीग नून की जो सियासी वर्कर है समिया चौधरी, उसके मर्डर का केस अभी तक हल नहीं हो सका। पुलिस हुकाम से जो आज हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मकतूला का कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है और उस रात उन्होंने जिन जिन लोगों से रब्ता किया था तमाम को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जिन लोगों के बयानात में कुछ तजाद है उनसे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस अभी तक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकी, जबकि पुलिस का ये कहना है कि चूंकि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी किस्म का टार्चर या कोई और शवाहिद सामने नहीं आ सके थे जिनसे कोई हतमी नताइज कायम किए जा सकें, इसलिए फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ये भी क्लियर होगा कि आया ये खुदकुशी थी, मर्डर था या किसी और वजह से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि अभी तक जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया था कि उनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है और ये नेचुरल डेथ है। तमाम पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तकरीबन 100 के करीब लोगों को अब तक शामिल तफ्तीश किया जा चुका है जिनके बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं। सरकारी हॉस्टल्स चंबा हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जबकि जो मकतूला है उनके साथ जिन लोगों के राब्ते थे उन लोगों को पुलिस पे बुलाकर पुलिस स्टेशन में उनसे तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ लोग अभी भी पुलिस की जेर हिरासत है, ताहम अभी तक बहुत से लोग जेर हिरासत है, लेकिन असल इंतजार जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का है। मजीद आपसे जानेंगे कामरान, फिलवक्त बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में मखदूश इमारत का गुज़िश्ता रात एक हिस्सा गिर गया जिसके बाद मुतादिद अफराद महसूर हो गए। मकीनों ने मुआवजा मिलने तक एहतजाजन इमारत से बाहर निकलने से इनकार किया, जिसके बाद मुज़ाकरात में मालिक के साथ मामला तय पा गए। इमारत में रिहाइश पजीर घरानों को फी कस 1.5 लाख रुपए अदायगी की जाएगी। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद फ्लैट खाली करने पर रजामंद हो चुके हैं। मजीद बताएंगे सैयद ज़ीशान अहमद। पाकिस्तान चौक का इलाका जहां गुज़िश्ता शब इमारत का जीना गिर गया और इमारत में रिहाइश पजीर अफराद महसूर होकर रह गए। कुछ अफराद ने इमारत रजाकाराना खाली कर दी तो कुछ घरानों ने मुतबादिल रिहाइश मिलने तक इमारत छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर जोड़ तोड़ और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इमारत मालिक की जानिब से फी घराना 1.5 लाख रुपए अदायगी पर मामला तय पा गए।
कई घंटे महसूर रहने वाले रिहायशियों को स्नॉर्कल के जरिए इमारत से बाहर निकाला गया। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से जायद ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें हुकूमत की जानिब से नाकाबिल रिहाइश और मखदूश करार दिया जा चुका है, मगर ना तो इंतजामिया मकीनों को यहाँ से मुंतकिल करने में संजीदा है, ना ही मकीन यहाँ से जाने को तैयार हैं। हमसे 4 लाख रुपए एडवांस हुई है। अभी मकान मालिक जो है, जिसका मकाम, वो बोले हमको पैसे वापसी नहीं दे रहा। जब तक पैसे वापसी नहीं दे, जब तक हम मकाम खाली नहीं करें, हम कहाँ जाकर, हम गरीब बंदे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ हम जाकर रहेंगे। कुछ हमको पैसा मिलेगा, हम दूसरा मकाम खरीदेगा, अगर मिलेगा नहीं तो हम कहाँ जाएगा। डर लगता है, क्यों नहीं लगता? इंसान जैसी चीज़ है, क्यों डर नहीं लगता यार। इंतजामिया ने इमारत को खतरनाक करार देते हुए लोगों को इमारत के करीब से न गुजरने की भी हिदायत की है। और आपको बताएं कि कराची के इस इलाके पाकिस्तान चौक में मखदूश इमारत को खाली कराने के लिए स्नॉर्कल की मदद ली जा रही है और इस वक्त वहीं मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम हैदर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंतजामिया क्या बताती है, कितने घराने इस वक्त अंदर मौजूद हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज दोपहर को यह वाक़या पेश आया है ओल्ड सिटी एरिया में पाकिस्तान चौक के करीब। ये मेरे अक़ब में जो बिल्डिंग है, इसका छज्जा गिरा था और ये पूरी इमारत जो है ये मखदूश करार दे दी गई थी हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर जो है वो बैनर भी लगे हुए हैं। इस इमारत को जो है वो ये रहने के लिए ख़तरनाक जो है वो करार दे दिया गया था। इस बिल्डिंग में तकरीबन 19 फ्लैट्स हैं और उसमें 19 फ्लैट्सों में तकरीबन 5 से 6 फैमिलीज जो हैं वो उस टाइम मौजूद थी जब ये जो है वो सानिया पेश आया, जब छज्जा गिरा है। ये स्नॉर्कल है जिसके जरिए उन फैमिलीज को जो है वो नीचे लाया गया है, क्योंकि छज्जा जो सीढ़ियाँ थी, जो छज्जा था, वो मुकम्मल तौर पर गिर के जो है वो टूट चुका है। अब ये फैमिली सिर्फ इस क्रेन ही के जरिए रेस्क्यू होकर जो है वो नीचे आ सकती है। यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर ओल्ड सिटी एरिया जो है वो कुछ देर पहले आए थे। उन्होंने फैमिली से बात की, उनको मनाने की कोशिश की, तो एक फैमिली जो है वो उनकी बात मान गई है और वो नीचे आ गई है। मगर अभी भी आप देख सकते हैं ये क्रेन जो मेरे अक़ब में मौजूद है वो फैमिली को लेने के लिए ऊपर गई हुई है। 2 ख़वातीन और बच्चे उस फैमिली में शामिल है और उनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक नीचे नहीं आएंगे जब तक हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे। जी वसीम, मजीद आपसे जानते रहेंगे। फिर वक्त बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र होगा कराची के ज़िमनी इलेक्शन का। अहम खबर आपको दें कि बानी MQM के हक में इसी हवाले से नारे लग गए हैं। NA 258 के ज़िमनी इंतखाब में बैलेट पेपर्स पर नारा लिख दिया गया। MQM के बॉयकॉट के बावजूद आज पतंग को वोट डाले गए। 287 पोलिंग स्टेशन में से 189 के गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि बानी MQM के हक में नारे लग चुके हैं। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे अमीन शाह ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, बताइएगा, MQM ने तो बॉयकॉट किया था लेकिन उसके बावजूद पतंग को आज वोट डाले गए, और मजीद भी बताइएगा क्योंकि MQM के हक में बाकायदा नारे भी लिखे गए हैं बैलेट पेपर्स पर। जी, आज NA 258 के ज़िमनी इंतखाब का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार थे मुमताज अली इमरानी, उन्होंने बाइकाट किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बाइकाट के ऐलान के बावजूद मुमताज अली इमरानी को वोट कास्ट किए गए और जब आज वोटों की गिनती शुरू हुई तो उस वक्त बैलेट पेपर पर जो वोट कास्ट किए गए थे मुमताज अली इमरानी को मलीर के मुख्तलिफ हल्कों से कास्ट किए गए वोटों यानी बैलेट पेपर पर MQM के बानी के हक में नारे भी लिखे हुए थे और उस पर जो है वो इंतखाबी निशान भी सब किया गया था। तो इस तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से इस तरह के बैलेट पेपर जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। जो बाइकाट करने वाली 3 जमातें थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ और उसके अलावा मुत्तहिदा दीनी महाज और अहले सुन्नत वल जमात, उनके उम्मीदवारों को भी कुछ वोट पड़े हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे अब्दुल हकीम बलोच, वो अब तक सर फहरिस्त हैं और 189 जो है वो 189 पोलिंग स्टेशन के नतायज आ चुके हैं। ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बॉयकॉट के बावजूद NA 258 के ज़िमनी इंतखाब में बैलेट पेपर पर पतंग के निशान पर मोहर ही नहीं लगी बल्कि बानी MQM के हक में नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे थे अमीन शाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो कौमी असेंबली के हल्का NA 258 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच की कामयाबी अब यकीनी हो चुकी है। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों पर 41,000 वोटों की बरतरी हासिल है। ज़िमनी इंतखाब के मार्के में पीपल्स पार्टी को कराची की एक और छिनी हुई निशिस्त मिल गई। NA 258 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सबसे आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सफर लांगा JUI के शाह वलीउल्लाह समेत दीगर 13 उम्मीदवार वाज़े बरतरी हासिल करने में नाकाम रहे।
MQM ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट, जबकि तहरीक इंसाफ और अहले सुन्नत वल जमात ने सरकारी मुदाखलत के बाइस इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। NA 258 में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर इख्तिदाम पजीर हुआ और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आगे देखिए, कराची में किसने किसके खिलाफ इश्तिहार छाप दिया। और नेदरलैंड में दरियाफ्त हो गया अनोखा होटल। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की छानबीन का फैसला कर लिया है। इस पर पार्लियामेंटेरियंस क्या राय रखते हैं, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियंस के उन असासों की छानबीन करने का फैसला किया है जो हर साल जमा कराए जाते हैं। असासों की जांच पड़ताल का अमल 1 दिसंबर से शुरू होगा। उसके लिए कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी फैसला सिर्फ सालाना गोशवारों के तकाबली जायजे का हुआ है। काउंटर चेकिंग करना है या नहीं, इस पर फैसला अभी बाकी है। जिम्मेदारी ज्यादा उन्हीं का बनता है और उन्होंने अच्छा काम किया और पहले से होना चाहिए था। हम लिख के देते हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं और इसमें हमारे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चेक करना चाहिए। आदमी अंदर से साफ है तो उसको किसी भी हालत में कोई भी चेक करे, अवाम चेक करे, उनको डर नहीं होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के असासों की छानबीन में जरूरत पड़ने पर FBI, नैब और दीगर अदारों से भी मदद ली जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि वो इस इकदाम को सराहते हैं। एज अ पॉलिटिशियन मुझे वेलकम करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन उसको चेक करना चाहती है तो करे। जितना बड़ा गंद जो है इस असासों में है, मेरा ख्याल है इसको क्लियर होना चाहिए। असासों की पड़ताल का फैसला तो हो गया, अब क्या इन असासों की सदाकत जानने के लिए तहकीकात होंगी या नहीं, इसका फैसला भी पड़ताल अमल शुरू होने से पहले हो जाएगा। और अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की, जिसने किसी को नहीं बख्शा। क्लिफ्टन हो या लियाकताबाद, सदर का इलाका हो या लियारी, बड़े बड़े बिजली चोरों की प्रॉपर्टीज के नाम और वाजिबुल अदा रकम सब कुछ अखबार में छपवा दिया है। अलकरम स्क्वायर 42 करोड़ रुपए के साथ बिजली चोरी में सबसे आगे है। दीगर शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजाज भी करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात वसूली की मुहिम तेज कर दी। बिजली के नादहिंदगान के खिलाफ इश्तिहारात शाया कर दिए गए। कौमी अखबारात में शाया होने वाले इश्तिहारों में वाजिबुल अदा रकम की अदायगी का तकाजा किया गया है। इश्तिहार के जरिए 20 प्रॉपर्टीज की निशानदही की गई, जिनके जिम्मे 28 करोड़ 24 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। इश्तिहार में अलकरम स्क्वायर सबसे बड़ा नादहिंदा करार दिया गया, जहां 42 करोड़ 91 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। इन प्रॉपर्टीज में अलकरम स्क्वायर के अलावा इकरा सिटी फेज 2, गडाप टाउन पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए, फलकनास टावर शाह फैसल पर 4 करोड़ 15 लाख रुपए और इरम शॉपिंग सेंटर नॉर्थ नाजमाबाद पर 3 करोड़ 92 लाख रुपए के वाजिबात हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नादहिंदागान के खिलाफ ये पॉलिसी भी अपनाई गई थी कि जिन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा होगी वहां लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। ताहम अदालत ने इस पॉलिसी को आइन के मुनाफी करार दिया था। अब देखना यह है कि नादहिंदागान के नामों की तशहीर से के इलेक्ट्रिक को करोड़ों रुपए का नुकसान पूरा करने में कितनी मदद मिलती है। और अब जिक्र करते हैं नेदरलैंड के अनोखे होटल का, जहां तलाक के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी शरीके हयात से जान छुड़ा सकते हैं। हंसते खेलते अपने शरीके हयात को खैरबाद कहने के लिए होटल जाएं और तलाक देकर हंसी खुशी घर लौट आएं। तलाक देने या तलाक लेने का अमल इंतहाई तकलीफ। इस अमल में खुशियां नापेद और तलखियां गालिब होती हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां तलाक हंसते खेलते और तफरीह करते होती है। यकीन नहीं आता है तो चलिए नीदरलैंड के डिवोर्स होटल, यहाँ एक हफ्ते की बुकिंग कराएं, खूबसूरत माहौल का लुत्फ उठाएं, हाथों में हाथ डालकर वॉक करें, बाइक पर बैठकर माजी की यादें शेयर करें और फिर चेक आउट करते हुए अपने हमसफर को खैर बात कहते हुए तलाक का सर्टिफिकेट साथ ले जाएं। यहाँ $8,000 पर सालिस और वकील दस्तयाब हैं जो आपके साथी से जान छुड़वाने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाते। सोचिए, कभी हुई है किसी की ऐसी तलाक? डिवोर्स होटल की बढ़ती मकबूलियत के बाइस अब इसकी अमेरिका में भी ब्रांच खुलने वाली है।
न्यूज़ शो में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।